Hello, am I audible now? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Morning. So, so in the last class, we see the different types of non-conventional or non-traditional machining process, uh, where I have left one unconventional machining, which one is the electrochemical machining. So electrochemical machining, today I discussed the electrochemical machining. Actually, the electrochemical machining is such a different types of machining from other non-conventional machining. From to the non-conventional machining, you have seen the metals are removed due to erosion or due to melting or evaporating, melting and evaporating. So metal जो remove हो रहा था workpiece से, tool और workpiece are not connected to each other, and metals are removed due to abrasion or due to erosion due to abrasion, and the sometime it will be heated the material, heated the metal piece or the work piece, and then evaporating. These types of phenomena generally occurred in the different types of ultrasonic, laser beam, electro discharge machining, and the abrasive water jet machining, and the electro beam, plasma arc, all the things, all the machining which you have studied. Today we will see the electrochemical machining, where the phenomena of or the principle of the removing the material is the ion displacement method. So ion displacement method in generally work on the electrolysis process. So electrolysis process kya hai, and who will invent the electrolysis process? So electrolysis process is generally done or generally discovered by the Faradays, and this is called the Faraday law of electrolysis. So generally ion displacement method मतलब यहाँ पे करंट जो प्रोवाइड करेंगे वो हाई करंट होगा, लो वोल्टेज होगा, वर्कपीस और टूल के बीच में वोल्टेज क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइट उसमें डालेंगे, मतलब कुछ सॉल्यूशन और ब्राइन सॉल्यूशन विच वी हैव पुट बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस, which are the conductivity of मतलब कंडक्टिव मटेरियल, कंडक्टिव ब्राइन सॉल्यूशन होगा जो हीट और इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होगा. वो क्या करेगा कि मटेरियल से आयंस को डिकम्पोज कर देगा और उसको फिर बहाकर ले जाएगा. सो दिस इज द एक्चुअली द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं. सो लेट अस लुक द स्लाइड नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. So electrochemical process, everyone can able to see? Yes, Why? sir. Yes, sir. Yes. So Yes, sir. ECM is commonly known as ECM process, electrochemical machining. So ECM is the process of metal removal by ion displacement. Ion displacement या ion discomposition. मतलब आयंस जो होता है कोई भी मटेरियल्स, कोई ब्राइन सॉल्यूशन या सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल में क्या होगा कि उसको पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा. जब करंट प्रोवाइड होगा, जब करंट मिलेगा उसको, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से में कन्वर्ट कर देगा, और एनोड से मटेरियल रिमूव करके वो कैथोड पे या फिर ब्राइन सॉल्यूशन से उसको बाहर कर देगा. So ion displacement method, it is a different method, some things like the other conventional machining. So this process actually में ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो है ये पहले इन्वेंट नहीं हुआ था. पहले क्या करते थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी भी मटेरियल्स पे ऊपर
पे पॉलिश चढ़ाने के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करते थे, जिससे उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता था, कोटिंग प्लेटिंग करते थे। लेकिन उसी का रिवर्स प्रोसेस है ये कि उसमें मेटल को चढ़ाते थे और इससे मेटल को रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलता था उसका रिवर्स प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस विद द मॉडिफाइड प्रोसेस और रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है कि इसको सबसे बेटर समझने के लिए इसका सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें आयन डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोलाइसिस चढ़ाना है। इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह का बनता है। एक सबसे पहले एक तो कंटेनर होगा, एक कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर में हम अपना वर्कपीस को एक जगह पे प्लेस कर देंगे। सो इट इज द बेस पॉइंट वेयर द वर्कपीस आर बी प्लेस्ड। वर्कपीस रख देते हैं, इसके नीचे इसके ऊपर हम टूल लगा देते हैं। और इस वर्कपीस को इस टोटल कंटेनर को हम इलेक्ट्रोलाइट से फिल कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन or the material or the liquid material which are used to provide the current between the, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हीट का और इलेक्ट्रिक का कंडक्टिव मटेरियल यूज करते हैं। जैसे NaCl, HCl, H2SO4, इट इज ऑल द मटेरियल्स आर द कंडक्शन ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो वी विल यूज द कंडक्टिव मटेरियल, कंडक्टिव ब्राइन सॉल्यूशन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। यहाँ पे एक पंप लगा, यहाँ पे एक पाइप लगा के पंप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट को सर्कुलेट करते रहता है। ये इलेक्ट्रोलाइट को टूल के मिड से हम गुजारते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में जो बनेगा आयन डिस्प्लेसमेंट, उसी से हमको डिकम्पोज हो मटेरियल। नाउ द सेकेंड वन इज दैट हम टूल को और वर्कपीस को पावर सप्लाई डीसी वोल्टेज से हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। वर्कपीस को पॉजिटिव रखते हैं और टूल को नेगेटिव, और इलेक्ट्रोड की तरह टूल काम करेगा, कैथोडिक आयन। अभी क्या है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्राइन सॉल्यूशन रहेगा वो NaCl या इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा वो सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 या अल्कलाइन H2SO4 और वाटर के साथ मिक्सचर भी यूज करते हैं। ये सारा कंडक्टिव मटेरियल, कंडक्टिव सॉल्यूशन है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। सो अभी क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब वोल्टेज, जब करंट प्रोवाइड होता है तो इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिव मटेरियल्स है। तो ये जो होगा यहाँ पे मेटल, जो वर्कपीस पे जो मेटल है उसका, वो मेटल को भी आयन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल के Fe, मतलब फेरस का मटेरियल, मतलब स्टील का वर्कपीस है आपका, तो उसका फेरस एटम है, ये फेरस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकाल के डिकम्पोज करके बाहर निकालेगा। फिर ये NaCl है, ये भी डिकम्पोज होगा आएगा Na+Cl में। इससे ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करेगा और इससे सारा मटेरियल डिकम्पोज होके बाहर निकल जाता है। इसमें होता कैसे है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है वो अभी देखेंगे। इसका फंडामेंटल पार्ट है ये कि ये मटेरियल्स को, ये जो वर्कपीस है हमारा जनरली जो यूज करेंगे, स्टील, ब्रिटल मटेरियल जो भी हो, फेरस, आयरन, कार्बन, ब्रास, ये सब जो यूज करेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा आयन में, क्योंकि इसको ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट से कारण, और ये इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट से
करंट को लेकर केमिकल रिएक्शन करेगा और केमिकल रिएक्शन करके जो इसमें सॉल्यूशन है उसको आयंस में डिस्प्लेस करेगा और नीचे से पॉजिटिव आयंस को यहाँ से निकालेगा और निगेटिव की तरह इसको खींचेगा। तो इसमें NaCl है, तो Na प्लस Cl जो है निगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, तो इसका निगेटिव आयन इसका पॉजिटिव आयन खींच के इसको निगेटिव आयन से करके डिकम्पोज करिए, या इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंबाइंड होकर ये बाहर ब्राइन सॉल्यूशन से बाहर निकाल के उसको सर्कुलेट करते रहेगा। अभी क्या है कि जब एक सिंपल एग्जांपल लेके इसको समझेंगे कि जब हमारा मशीनिंग करना हो स्टील का, फेरस का, और उसमें फेरस के लिए जब मशीनिंग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, तो जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सस्ता होता है और अच्छा कंडक्टिव मटेरियल, कंडक्टिव सॉल्यूशन है हीट का और वाटर का, हीट का और इलेक्ट्रिक का। सो इसमें जो मेटल रिमूव होता है, जिस शेप का टूल होगा उसी शेप का टूल हमको, उसी शेप के टूल इतना वो आयंस को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज जो प्रोवाइड होता है वो डिफरेंस बिटवीन टूल और वर्कपीस के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही वोल्टेज हमको प्रोवाइड होता है और उसी के बीच में ये सारा केमिकल रिएक्शन होता है। सो ए सेपरेट टूल इज मेड फॉर कैथोड। तो टूल होता है उसको कैथोडिक निगेटिव चार्ज से ऐड करते हैं बैटरी से, डीसी पावर सप्लाई से, और जो वर्कपीस है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं हम डीसी पावर सप्लाई से। सो ए स्मॉल गैप इज मेंटेन बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। द इलेक्ट्रोलाइट, नाउ इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलरली पंप सर्कुलेट करते रहते हैं। सो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज हाई करंट, इसमें जो प्रोसेस होता है इसमें करंट हाई लगता है और वोल्टेज लो लगेगा। एक्चुअली में होता क्या है, ड्यूरिंग द ECM प्रोसेस देयर विल बी अ रिएक्शन अकर एट द इलेक्ट्रोड, दैट इज एट द एनोड वर्कपीस, दोनों पे एक केमिकल रिएक्शन होगा। अभी हम समझेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, इसको देखना है। यहाँ जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो NaCl का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है वो Na प्लस NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है, प्लस इसमें वाटर मिक्स है, सोडियम क्लोराइड को वाटर मिला देते हैं, सॉलिड सोडियम नमक है उसमें पानी मिला के आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। तो इसमें NaCl और वाटर है। अभी क्या होगा कि जैसे ही करंट मिलेगा, अभी मेरा जो वर्कपीस है, ये जो वर्कपीस है वो स्टील का फेरस का है। फेरस के लिए बहुत अच्छा सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है NaCl प्लस H2O। सो फेरस का मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, फेरस का मेरा आपका वर्कपीस है। यहाँ टूल है, लेटेस्ट एक मिनट रुक जाओ, ये वर्कपीस है मेरा, वर्कपीस से मेटल रिमूव होगा और ये टूल है, टूल और वर्कपीस के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ से पंप से आपका पंप नहीं बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए पंप होगा, यहाँ पे हम पावर सोर्स से ऐड कर देते हैं इसको। ये डीसी पावर सप्लाई मिलता है इसको, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीच में जो मेरा है वो सॉल्यूशन है NaCl का। अभी क्या होगा, इसमें जो NaCl को जैसे ही करंट से सप्लाई मिलेगा तो NaCl कंडक्टिव मटेरियल है, कंडक्टिव पार्ट है, तो NaCl क्या करेगा, NaCl जो क्या करेगा, Na पॉजिटिव आयन सोडियम प्लस क्लोरीन निगेटिव आयन के साथ ब्रेक कर देगा,
ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम का पॉजिटिव आयन होगा और क्लोरीन का निगेटिव आयन हो जाएगा। प्लस H2O क्या करेगा, H2O जो है हाइड्रोजन वाटर जो है वो अगेन जो है वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही इसको करंट मिलेगा वो क्या करेगा, अपना आयन डिकम्पोज कर देगा। आयन डिकम्पोज कर देगा मतलब ब्राइन सॉल्यूशन जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करके जैसे ही करंट मिला वो अपना पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाता है। अभी क्या है कि मेरे पास जो वर्कपीस है वो फेरस का है। सो फेरस जो है फेरस मटेरियल पे जैसे ही वोल्टेज करंट मिलेगा तो फेरस आयरन जो फेरस है मतलब आपका लोहा आयरन है, वो पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन दे दो इसको माइनस, इसमें ब्रेक कर जाएगा। ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप कि बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी एटम पॉजिटिव एटम अगर अपना आयंस में कन्वर्ट होता है तो पॉजिटिव आयन पे 2 चार्ज होता है और इसका वैलेंसी के बराबर जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव दे देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फेरस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन जो है हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रॉन से लेके हाइड्रोजन गैस बना के वो बाहर निकल जाएगा। वो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन H2O जो वाटर डिकम्पोज हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये टूल की तरफ अट्रैक्ट होगा। टूल जो है मेरा क्या है, कैथोड, तो ये कैथोड निगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन बना तो ये निगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकल जाएगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये पॉजिटिव बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। दूसरा नंबर बात कि जब मेरा फेरस ऑक्साइड है, ये पॉजिटिव आयन है, फेरस जो आयरन है मेरा वो ये पॉजिटिव आयन है, ये क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सब करके दिखाए हैं, 2 मोल क्लोराइड को लेके यहां से ये क्लोराइड को लेगा निगेटिव आयन और ये बना देगा फेरस क्लोराइड FeCl2। ये केमिकल रिएक्शन होगा। फेरस ऑक्साइड जो मेरा वर्कपीस है, जो स्टील जो मेरा वर्कपीस है जिसमें आयरन होता है, वो जब ब्रेक करेगा आयंस में तो Fe+2 इलेक्ट्रॉन के साथ जब मैच करेंगे तो ये केमिकल इक्विवेलेंट हो जाता है और ये फेरस आयन पॉजिटिव आयन है, वो NaCl को पकड़ के NaCl का निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है और FeCl2 बना देता है। तो पहला इसमें बन जाता है FeCl2 सॉल्यूशन। दूसरा क्या है कि NaCl का पॉजिटिव आयन मतलब सोडियम, वाटर का निगेटिव आयन जो मेरे पास है OH, उसको अपने साथ केमिकल रिएक्शन कराता है और ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जब सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट को चार्ज मिला तो वो क्या किया, NaCl और H2 को ब्रेक कर दिया, सबसे पहला पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन में। नाउ हमारा वर्कपीस जो फेरस का है, स्टील फेरस का है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इक्विवेलेंस बनाकर वो Fe+2 इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस में आ जाएगा। तो ये Fe 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन से रिएक्शन करके FeCl2 बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर मॉलिक्यूल के डिकम्पोज होने से हाइड्रोक्साइड मिलता है, वो उससे
रिएक्ट करके NaOH बना देगा। तो अब मेरे पास जो सॉल्यूशन में जो केमिकल रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, वो हुआ, उससे जो बना मेरा मटेरियल वो बना NaOH और FeCl। अभी मेरे पास जो बन गया आ गया वो आ गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस FeCl2 बन गया। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड FeCl दो मटेरियल हमारा ब्राइन सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन में हमारा तैयार हुआ। अभी क्या करेगा, इस दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल्स NaCl 2 मॉलिक्यूल्स प्लस फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH दो मॉलिक्यूल्स। इसको थोड़ा केमिकल रिएक्शन से आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस ही होगा। 2 मोल फेरस ऑक्साइड, यहाँ 2 मोल दे दीजिए आप, 2 मोल NaCl 2 मोल दे दीजिए यहाँ पे OH2 हो गया, इधर OH2 हो गया, इधर OH2 हो गया, Fe2 हो गया, इधर हो गया। तो ये FeCl2 FeOH2 जो है हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है। इसमें देखो फेरस का डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये फेरस देख रहे हो, ये मेरा वर्क पीस है, यही जो मटेरियल है वो रिमूव होके हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉल्यूशन में मिल जाएगा और सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा। तो हमारे कहने का ये मतलब है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ये सारा केमिकल रिएक्शन आपको हम यहाँ दिखा दिए हैं और उसके ऊपर नोट्स भी लिख दिए हैं। पहला क्या होगा, NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, Na प्लस Cl में ब्रेक हो जाएगा और वाटर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के पास एक पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन है। अभी मेरा वर्कपीस है क्या, मेरा वर्कपीस है फेरस का। फेरस में क्या करेगा, फेरस जब ब्रेक होगा तो फेरस Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। अभी इसका जो फेरस है वो केमिकल रिएक्शन कर लेगा क्लोरीन के साथ ये FeCl2 बना देगा और जो सोडियम ब्रेक हुआ है वो हाइड्रोक्साइड को लेके NaOH बना देगा। नाउ NaOH एंड FeCl2 देन रिएक्शन करके हमारा बना देता है क्या, NaOH प्लस FeCl2 हमारा बना देता है NaCl, जो NaCl आपका ब्राइन सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हमेशा फ्लो करते रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट चेंज नहीं होगा, हमें अलग से NaCl डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है वो देखो फिर से हमको NaCl दे देता है और ये FeOH फेरस हाइड्रोक्साइड ये बाहर निकल जाता है, यही मटेरियल से रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से। हमारा फेरस है वर्कपीस, देखो फेरस डिकम्पोज हो गया, निकल गया फेरस मटेरियल से, ये प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल गया। यही प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में होता है। हमारा वर्कपीस एनोड जो होता है वो जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही करंट मिलता है उसका निगेटिव आयन से हमारा पॉजिटिव आयन निकल कर उसके पास चल जाता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है। This ferrous hydroxide is the form of sludge and it will be decomposed and it will be keep it out through the pump of the electrolyte. पंप इलेक्ट्रोलाइट का क्या फंक्शन है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिव होगा, कंडक्टिव मटेरियल यूज करेंगे, कंडक्टिव सॉल्यूशन यूज करेंगे और हीट का भी सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो इससे क्या है कि पहला मेरा टूल वियर कम होता है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में टूल वियर सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें हीट का जनरेशन नहीं होगा, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक होगा। जो भी हीट जनरेट होगा तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे इट विल बी गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन एंड हीट कंडक्शन। ये क्या करेगा, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को आपस में कंडक्ट करवाएगा
ताकि आयन का डिसोल्यूशन, आयन का डिकम्पोज अच्छे से हो इन द सॉल्यूशन, सो डैट हमारा वर्कपीस का पॉजिटिव आयन, हमारा वर्कपीस से पॉजिटिव आयन निकले और वो डिकम्पोज हो, जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन लिए हैं उसका निगेटिव आयन से वो डिकम्पोज करके बाहर हो जाए। ये हीट और वेस्ट मटेरियल जो वर्कपीस से निकलेगा उसका कंडक्शन, उसको फ्लो भी करवाता है रिएक्शन में। Allow the electrochemical reaction will take place the effective with the little tool wear. टूल wear इसमें नहीं होगा क्योंकि हीट जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कूलिंग भी करते रहता है टूल का। सो इलेक्ट्रोलाइट का यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन के लिए हम करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए क्या? द हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट, लो कॉस्ट का होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl, HCl, H2SO4, HNO3 एंड इन स्ट्रॉन्ग अल्कली भी यूज करते हैं हम लोग। दिस वन इज द डायग्राम है आपका इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ है जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। देखो यहाँ पे ये Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया, यहाँ वाटर है H प्लस OH माइनस में ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ फेरस मटेरियल से निकला पॉजिटिव आयन Fe प्लस प्लस आयन निकला, ये यहाँ से निकला और ये आइटम इस निगेटिव आयन को खोज रहा है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड के पास नहीं जाएगा, हाइड्रोक्साइड के पास पहले नहीं जाएगा, या हाइड्रोक्साइड के पास चला जाएगा तो डायरेक्ट वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। ये पहले क्या करता है कि क्लोरीन के पास जाता है और FeCl2 बना देता है। फिर ये Na जो सोडियम पॉजिटिव आयन है इसका हाइड्रोक्साइड के साथ अच्छा मेल खाता है, तो ये NaOH जो है बनाकर Na बाहर निकलता है। फिर NaOH और हमारे पास जो बना हुआ है FeCl2, ये रिएक्शन करके FeCl2 जो रिएक्शन करके NaCl प्लस FeOH निकाल देता है और फेरस को हाइड्रोक्साइड के साथ बनाकर बाहर प्रेसिपिटेट कर देता है, बाहर निकाल देता है, स्लज सॉल्यूशन है ये। सो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, ये चलता कहाँ पे है? इसके बीच में चलते रहता है, इसके बीच में ये चलता है। इसको थोड़ा सा टूल को थोड़ा सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको थोड़ा सा कोटिंग कर देते हैं ताकि यहाँ से मटेरियल रिमूव ना हो इधर का इन जनरल, और इस दोनों के बीच में ये सॉल्यूशन, ये केमिकल रिएक्शन चलता है। नाउ ये जो प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके करते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, वो फेराडेज ने बताया था। तो इसको फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, इलेक्ट्रोलाइटिक से हम डिनोट करते हैं। तो फेराडेज जो बोला था, इसमें मेटल रिमूवल रेट निकालना है आपको, कितना मेटल डिकम्पोज होगा हमारा वर्कपीस से। मतलब ये वर्कपीस है, इससे मेटल डिकम्पोज होगा, इससे मेटल डिकम्पोज होगा, ये जिस शेप का टूल है उसी शेप के टूल के आकार का यहाँ पे ये शेप का टूल, तो ये शेप का मेटल डिकम्पोज हो जाएगा हमारा वर्कपीस से। सो इसको फेराडेज बताया। तो फेराडेज का फर्स्ट लॉ बोलता था कि अमाउंट ऑफ मेटल डिकम्पोज फ्रॉम अ मटेरियल इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज गिवन टू द मटेरियल। जब जो चार्ज हम दे रहे हैं, जो चार्ज होगा, कूलम्ब होगा, कितना मेटल डिकम्पोज करेगा, तो मेटल उतना ही डिकम्पोज करेगा जितना प्रोपोर्शन में हम चार्ज को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें। तो हम जो चार्ज, जो मेटल, द मास ऑफ मेटल, द फैराडे फर्स्ट लॉ बोला, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन or decomposition is proportional to the amount of charge passes through it.
तो मान के चलो कि क्यू चार्ज हम इसमें प्रोवाइड किए थ्रू द डीसी पावर सप्लाई से, तो मास जो डिकम्पोज हुआ हमारा वर्क पीस से, मेटल जो रिमूव हुआ उसको मेटल रिमूवल रेट निकालेंगे, तो मास जो रिमूव हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है चार्ज, ये फैराडे लॉ बताया मुझे। सो हमारा क्यू जो चार्ज है इट इज इन द कूलम्ब, सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q is equal to charge directly proportional to I into time, मतलब current supply and the time of the current supply. So हम जब DC पावर से जब जोड़ते हैं तो करंट का सप्लाई होता है और चार्ज के रूप में, तो QM जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा और Q का वैल्यू होता है I into T. Q is equal to क्या होता है, चार्ज इज equal to current supply into the time. So Q is equal to Q is equal to IT. So mass flow is directly proportional to Q, or Q is equal to I into T. So mass flow rate directly proportional to charge current into the time. Now when the proportionality sign will removed, one constant will come. That constant is called Z, and Z is known as electrochemical equivalence. Electrochemical equivalence क्या है अभी बताता हूँ. So M, when the proportionality sign will remove, it will be equal to Z is a constant I into T. मतलब current passes over it and the time of the supply of the current. Now Z is equal to electrochemical equivalence, जो हम यहाँ लिख दिए हैं आप लोग को. क्या है Z is known as electrochemical equivalence, and this electrochemical equivalence is depend upon the EYF. Z is equal to EYF, and E केमिकल इक्विवेलेंस है, E केमिकल इक्विवेलेंस है, एंड F इज द फैराडे कांस्टेंट. नाउ Z का वैल्यू हम यहां रख देंगे, E इक्विवेलेंस है, केमिकल इक्विवेलेंस EYF into I into T. Now the metal removal ग्राम में होगा. मेटल कितना रिमूव होगा, E/F I into T. Z इज ए कांस्टेंट को हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं, ये फैराडे बताया. और ये जो है केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि मटेरियल का मेटल रिमूव करना है उसका एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जो होता है, जो मटेरियल है उसका एटॉमिक वेट इन ग्राम में लेना है, एटॉमिक वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंसी, जिसको आउटर स्टेट में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इज कॉल्ड द वैलेंसी, और जो स्टेट छोड़ता है सो इट इज कॉल्ड द वैलेंसी. सो नाउ the electrochemical equivalence E is denoted as, यहाँ हम लिख दिए हैं, atomic weight in gram by valency. So now E is equal to A by V. A is equal to the atomic weight, V is equal to the valency. यहाँ लिख दिया गया है, A is atomic weight, V is the valency. Now E का वैल्यू अब हम अपना इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा मास इज इक्वल टू A by V, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, फैराडे कांस्टेंट, करंट इनटू टाइम. सो मेरा इक्वेशन मिला, मेटल जो रिमूव होगा कितना होगा, वो होगा मेटल जो रिमूव होगा वो होगा एटॉमिक मास इज द मास विच विल बी रिमूव फ्रॉम द मटेरियल इज इक्वल टू atomic weight of the material by the valency into I, current supply or the time of the current supply, by एक फैराडे कांस्टेंट नीचे आया हुआ है इक्विवेलेंस के फॉर्मूला के साथ. सो फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96500. याद रखना है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू कूलम्ब में. सो
तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है कितना मेटल रिमूव हुआ, मास कितना रिमूव हुआ मटेरियल से, ए एटॉमिक वेट ऑफ द मटेरियल मीन डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैराडे कांस्टेंट डिवाइडेड एंड करंट इनटू टाइम। नाउ इस इक्वेशन से पता चलता है कि जिस मटेरियल का एटॉमिक वेट जितना ज्यादा होगा उस मटेरियल से उतना ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा। सो मटेरियल रिमूव m डिनोट करता है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट ऑफ द मटेरियल। सो जिस मटेरियल का एटॉमिक, एवरी मटेरियल्स हैव द फिक्स्ड एटॉमिक वेट, फेरस हो गया, सोडियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, इसका हर का एटॉमिक का वेट पता है हमें केमिस्ट्री से, पीरियोडिक टेबल से। तो जिस मटेरियल का जितना ज्यादा एटॉमिक वेट होगा उससे उसका मेटल रिमूवल रेट उतना ही ज्यादा होगा। नाउ अगर इस टाइम को इधर डिवाइड कर देते हैं तो मास डिवाइडेड बाय टाइम, नाउ दिस वन इज द ग्राम पर सेकेंड, मतलब मटेरियल मेरा इसी रेट से फ्लो करेगा। MRR ये अब हो जाएगा मटेरियल रिमूवल रेट। नाउ MRR इज इक्वल टू m डॉट एंड दिस वन इज इक्वल टू a into I v into f, AI by VF, ये आपको याद रखना है। हम एक बार अटेंडेंस आपको लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करो, ये क्लास ऑफ हो जाएगा और इसका थ्योरी भी खत्म हो गया। एक न्यूमेरिकल्स है, इसको करवाएंगे, आज नहीं होगा तो कल करवाएंगे। सो याद रखना है इसका फर्स्ट फॉर्म, इसमें फॉर्मूला कि मटेरियल रिमूवल रेट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग is equal to the atomic weight into the current supplied divided by the valency of the मटेरियल और एटॉमिक वेट, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं एथिक के लिए रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, उस मटेरियल का कितना वैलेंसी होगा, वो जिस मटेरियल का होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैलेंसी होती है। सभी के आउटर मोस्ट में जितना जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। सो इस प्रोसेस से आप मेटल रिमूवल रेट इन ग्राम पर सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। सो ग्राम पर सेकेंड में मेटल रिमूवल रेट होगा AI by VF। अभी होगा कि वॉल्यूम कितना